Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. These are the general objectives of this unit. What is lesson plan? Teacher's detailed description of the course of instructions for an individual lesson is known as lesson plan. A lesson plan is a written guide for trainers' plan in order to achieve the intended learning outcomes. It provides specific definition and direction on learning objectives, equipment, instructional medium, material, requirements, and conduct of the training. These are the different concepts of lesson planning. A lesson plan is a document that outlines the content of your lesson step by step. It's a list of tasks that your students will undertake to help guide your teaching. A lesson plan is usually prepared in advance and can either cover one of activity, an entire lesson, a unit of course, a day or a week. According to Woods, it defines the lesson planning as outlines of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. For a successful and effective teaching, planning is the first and the most important step of effective teaching as well. What is the need, why it is necessary to prepare a lesson for teaching? Because it helps in achieving goals and objectives, and same can be said on the part of the students. It helps to get rid of problems or avoid them. It gives a reality check of everyday performance. It improves the habits and attitude of students. It improves the teaching skills as well. So it is essential to make effective teaching or making learning environment more conducive to plan lesson plan for the teaching. It makes teaching orderly and easy. It makes a teacher organized during teaching. Lesson planning determines when to include the interesting facts to attract the students' attention. It enables the teacher to impart the things the students can do at the best of their abilities. ये टीचर जो हैं अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं. शॉर्ट टाइम को किस तरह से मैनेज करना है प्रॉपर वे में, आपका काम आसान हो जाता है, आप लेक्चर डिलीवरी आपके लिए आसान हो जाती है. आपके पास सारी आपने इसकी स्कीम ऑफ स्टडी को आपने उसका होल मतलब करिकुलम को आप देखो इजीली आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो कि किस तरह से आपने मंथली वीकली बेसिस पे कितने प्रपोर्शन को करिकुलम के आपने पढ़ाना है. सब्जेक्ट वाइज इसको डिस्टिंग्विश करते हो, पढ़ाना आसान हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, आपके लिए ईजी होता है क्योंकि अभी कमांड होती है उस टॉपिक पे. ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर किया होता है, वेल प्रिपेयर किया होता है, तो आपके लिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए आप इसमें कुछ अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़, कोई अदर चीज़ें, एक्टिव रोल प्ले और अदर जो है वो कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज़ का पता चल सके, टीचर की इनर एबिलिटीज़ को पॉलिश कर सकें और टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें. What is included in lesson plan? Lesson plans primarily include in a schedule of activities that you will deliver in the lesson. Some lesson plans also included additional sections for more through planning. Lesson activities, lesson materials, lesson objectives, lesson goals, and lesson feedback. These are the components of lesson planning. There are different styles of lesson planning. The common style of lesson planning contain the following basic elements: 3 to 5 lesson objectives, जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड करती हैं, और 3 एटलीस्ट जो है वो मिनिमम आप 3 ऑब्जेक्टिव ऐड करें और मैक्सिमम आप 5 तक भी जा सकते हैं, इसी लिमिट नहीं है. और इसके अलावा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी आप एक तो ऐड कर सकते हैं, जिसको स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव SLOs भी कहा जाता है. कंटेंट टू बी कवर्ड, कौन सा कंटेंट आपने कवर करना है, ये उसके अंदर पार्ट जो है मौजूद होता है. एक्टिविटीज़ लाइक आपने किस तरह से पढ़ाना है, अपने मेथड्स भी मेंशन करती हैं कि आपने लेक्चर मेथड, ग्रुप वर्क, डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और उसमें कोई एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, वर्क्स ऐड करती हैं. रिसोर्सेज मटेरियल कौन सा है, आप वाइट बोर्ड यूज़ करें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हैंडआउट्स यूज़ कर रहे हैं. टाइम एलोकेशन, कितनी टाइमिंग्स हैं, टाइम फ्रेमवर्क्स के अंदर मेंशन होता है कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने चीज़ पढ़ानी है. आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असेसमेंट, एंड पे आप फिर निगोशिएट करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, उनको असेसमेंट के लिए आपको जायज़े के लिए, और फिर उनको जो है होम टास्क या होमवर्क वगैरह असाइन करते हैं. अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग. There are different styles of lesson planning. The common style of lesson planning contains the following basic elements. These are discussed above. Daily and weekly planning. Daily and weekly plannings are essential for the teachers. These are
These create enough time for meeting multiple responsibilities. The teacher can plan days and weeks carefully to include the time for teaching exercise such as collecting, organizing material, writing questions, preparation class, assignments, and managing activities of different nature. This process allows creating a clear path of the teacher that maintains a healthy balance between teaching and preparation. डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे प्लानिंग करने से टीचर को जो है वो एक आइडिया होता है, क्लियर आइडिया होता है किस तरह से आप ऑर्गेनाइज वे में आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं, लर्निंग मटीरियल हैं, क्वेश्चन चीज़ें, आप लर्निंग गोल्स आपके क्या ऑब्जेक्टिव आपके किस हद तक मीट कर रहे हैं, एक्टिविटीज कितना ऐड कर रहे हैं और किस हद तक स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेक श्योर कर रहे हैं, ठीक है। और ये हेल्दी एक बैलेंस और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है लेसन प्लान की प्रिपरेशन। स्ट्रेटजीज फॉर डेली एंड वीकली प्लानिंग। प्लानिंग कैन ग्रेटली रिड्यूस योर स्ट्रेस quotient. Proper planning gives you the peace of mind of knowing that you have formulated a feasible plan of action and that your goals are attainable, ठीक है। ये आपके लिए मतलब जब एक टीचर प्रोफेशनल वे में आप उसको प्रिपेयर करते हो तो आपके भी बहुत ज़्यादा गेट रिड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है कि आपको पता होता है कि आपने इतने प्रोपोर्शन को आपने कवर किया है, इतने चीज़ को आप जो है वो कवर अप कर रहे हो और आप किस तरह से अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन से फिजिबल आप स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं और लर्निंग गोल्स को किस हद तक आपने अटेन कर ली, सब चीज़ें जो है वो आपकी प्लानिंग के साथ जो है वो प्रॉपर चलती हैं। प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर ऑब्स्टेकल्स बिकॉज पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज क्रिएटिंग एन एमरजेंसी प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाती हैं, आप बिफोर टाइम जो है वो उसको कोप कर लेते हैं। प्लानिंग सर्व्स एज अ वे टू evaluate your progress as you work. Planning your daily and weekly activities will clearly illustrate whether or not you are staying on schedule. आप schedule के according जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल आप चल रहे हैं या नहीं चल रही है, आपको पता चल जाता है प्रॉपर प्लानिंग से। वीकली डेली बेसिस पे प्लानिंग करने से पता चल जाता है कि समटाइम वेकेशन आ जाती हैं, कोई एमरजेंसी पेशेंट भी हो जाती है समटाइम, तो कोई इस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपके स्केड्यूल को, टाइम टेबल को, स्कीम ऑफ स्टडी को अफेक्ट करती हैं, तो फिर आपकी प्लानिंग से आपको सबसे पता चलता है कि हमने कहाँ पे इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश है, कहाँ पे इसको मज़ीद लेके चलना है हमने बेहतर बनाने के लिए। स्टेप्स इन द लेसन प्लानिंग: outline learning objectives, develop the introduction, plan the specific learning activities, the main body of lesson, plan to check of understanding, develop a conclusion and preview, create a realistic timeline, ठीक है। तो ये these are the main characteristics of the lesson planning। सबसे पहले आप अपने SLOs को डिफाइन करते हैं, आपके जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके इंट्रोडक्शन डेवलप करते हैं, फिर इसमें अपनी स्पेसिफिक लर्निंग का आप मटीरियल ऐड करते हैं कि ये वाला पोर्शन आपको पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट की नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप देखते हैं कि आपने प्लानिंग करते हैं कि बच्चे किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, बच्चों के एज, ग्रेड, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने इसको मेंटेन करना है और ये भी देखना है कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। फिर आपको कंक्लूजन पे जाना है और फिर प्रीव्यू लेना है ताकि आपको असेसमेंट से थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके बच्चों ने किस हद तक नॉलेज गेन कर ली और टाइमलाइन को भी आपने मीट करना है। The set that focuses students on the lesson's concept or skills. These include pictures or models and asking leading questions or recalling the previous lessons. An instructional component, it describes the sequence of events included in a lesson. It includes the teacher's instructional input and guided practice. The study try to understand new skills, work in the new ideas. तो इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट का मतलब ये कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी को लेके चलना है और ये आपको आप बच्चों को न्यू स्किल सिखा रहे हैं, न्यू नॉलेज सिखा रहे हैं, तो आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन मेथड या अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है ताकि आप बेहतर और सिक्वेंशियल वे में बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो आप पढ़ा सकें, सिखा सकें जो भी आप उनको नॉलेज सिखाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आता है, दिस प्रैक्टिस अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड नॉलेज एंड स्किल्स बाय देमसेल्व्स। इसमें क्या जाता है कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट के स्किल को सीख रहा है और खुद से करके वो एफर्ट को वो लर्न कर रहे हैं। असम्बली द टीचर रैप्स अप द डिस्कशन एंड आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर एंट्री करते हैं ताकि टीचर को आइडिया हो जो किस हद तक नॉलेज गेन किया है। उसके बाद एवेल्यूशन प्रोसेस आ जाता है। एवेल्यूशन कंपोनेंट अ टेस्ट ऑफ मास्टरी ऑफ द इंस्ट्रक्टेड स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स सच एज द सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो। टीचर एनालिसिस करती हैं, असेसमेंट करती हैं बच्चों ने किस हद तक नॉलेज गेन किया है। एनालिसिस कंपोनेंट टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द लेसन सच एज व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड, लर्न और व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट। आपको फ्लॉज पता चलते हैं, वीकनेस पता चलती है अपनी लेसन प्लानिंग की, अपनी टीचिंग की कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है, कहाँ पे आपको मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कॉन्टीन्यूटी कंपोनेंट, इट रिव्यूज़ द एंड रिलेट्स टू द कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन।
These are the key components of the lesson plan: profile, objectives, materials, equipment, procedure and assessment. First of all, the objective. After completion of the lesson, the children will be able to, this is example of the objective, recognize the basic shapes, circle, triangle and square, differentiate between basic shapes. अगर आप बच्चों को शेप सिखा रहे हैं छोटे लेवल पे, एलिमेंट्री प्री एलिमेंट्री पे, तो आप देखेंगे कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो गए, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. फिर प्री साइड स्किल में आता है, they have seen different objects, they have well developed cognitive ability, they have good attention span. ठीक है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा होता है, 15 to 20 मिनट के बाद वो एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकते हैं. इस तरह की कोग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको नेचुरल वे में सेटिंग में जिस क्लास में बैठे हैं आप उनको कहेंगे कि यहाँ पे सर्कल वाली चीज़ें कौन से आपको नजर आ रही है, फाइंड आउट करें. तो इस तरह से बच्चों को इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है. फिर इंस्ट्रक्टर मेथोडोलॉजी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, लेक्चर मेथड है, ड्रिल मेथड है, क्वेश्चनिंग है, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन है, वो आप मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं. इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, वाइट बोर्ड है, रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चार्ट्स हैं, वर्कशीट्स. प्रॉम्प्ट मेथड है, देयर टीचर विल यूज़ फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट. ठीक है, आप बोल के बच्चों को गाइड करते हो, समटाइम नॉन वर्बल जेस्चर से आप बच्चों को गाइड करते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उनको बताते हो, समझाते हो, आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हो. प्रोसीजर ऑफ लेसन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स. Step 1, teacher will draw the attention of students towards himself by saying Assalamu alaikum. Step 2, teacher will check prior knowledge of students by showing objects and ask what is the shape of this object. ठीक है, टीचर को बताएंगे कि ये objects हैं, आप क्या आपके बारे में फेमिलियर हैं. Step 3, children will be told that today will learn about basic shapes such as circle, triangle and square. Step 4, teacher will give concrete knowledge about the shape of circle with the help of charts, triangle and square. Number 5, by showing charts, teacher will concrete knowledge about triangle shape. Step 6, by showing chart, the teacher will give concrete knowledge about square shape. Step 7, the teacher will show real objects to children. They will also be told that these are called circle, triangle and square one by one, 2 to 3 times. Step 8, the whole lesson will be repeated in a short but comprehensive way. ठीक है, आप उसको सारा रिकॉल करेंगे और स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे. Then evaluation process है. Evaluation will be done through worksheets. Each child will be asked to match shapes with similar one. अब बच्चों को 1 by 1 बुलाएंगे और कहेंगे कि सर्कल के साथ सर्कल को रखें, ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल की शेप को रखें. तो इस तरह से बच्चे जो है उसको लर्न करेंगे. रेनफोर्समेंट में है, प्राइमरी लेवल पे स्मॉल ग्रेड, अर्ली ग्रेड्स पे आप कह सकते हैं. प्राइमरी रेनफोर्समेंट will be provided in the form of the candies. Hope so you can understand today's lecture. If you have any question you may ask in the comment box. Thank you. Now please.